So we have already learned this is the fourth lecture of Trigo 2. To fourth lecture, and we have already learned compound angle. Okay, now in today's lecture we will be studying about double angle, triple angle formulae. So first is double angle formulae. Heading डालो double angle formulae. Okay, so the first formula, sine 2 theta. Sine 2 theta. See, till now we have seen sine theta, sine square theta. But sine of 2 theta means what? The angle of sine is 2 times theta, right? 2 theta. So there's a direct formula that you have to remember, that sine 2 theta is equal to 2 sine theta into cos theta. This is first formula. There is one more formula in terms of tan, that is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. This is the formula for sine 2 theta, both of these. And we have to learn both the formula. ये formula कैसे आया है? So it's very simple proof. Even you can do it at home. See, I will take left hand side sine 2 theta. ठीक है? अभी sine 2 theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं. Yes? Now, if it is theta plus theta, then don't you think it looks like sine of A plus B? So, if I apply sine of A plus B, so it will be sine A cos B, AB theta है, BB theta है, plus cos A sine B. So what will happen? This is sine into cos, and this is also sine into cos. Multiplication में आप sine into cos लिखो, cos into sine लिखो, it's one and same thing. So don't you think then it becomes 2 times sine into cos? Have you all understood this? तो आ गया फॉर्मूला, डिराइव हो गया. ठीक है. अभी बोलोगे सर ये सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे आया? तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, बट इन टर्म्स ऑफ tan. तो अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्यों साइन 2 थीटा के इक्वल है, तो इसको सॉल्व करो 2 tan थीटा को. यस, देखो, अगर मैंने 2 tan थीटा को सॉल्व किया राइट हैंड साइड को, तो 2 tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस, देन 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, देन numerator will remain as it is, 2 sin theta upon cos, sorry, upon cos theta, but denominator will become क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. तो देखो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 साइन और नीचे बचेगा 1 अपॉन कॉस. ये 1 अपॉन कॉस ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस, एंड 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है? साइन 2 थीटा. हेंस द प्रूफ. Did you all get it? Yes, students? So it's quite easy and simple. You can prove it, right? अभी बाकी के फॉर्मूलेस के मैं प्रूफ नहीं करूँगा. टेक्स्ट बुक्स में प्रूफ्स आर गिवन, आप डायरेक्टली उसको समझ सकते हो या खुद भी आप डिराइव कर सकते हो. ठीक है.
Fine. Let me just delete this. We'll go to the next page now. Have you all noted this? First formula. Okay. Now, so the first two formulas were of sine 2 theta, sine 2 theta, 2 sin थीटा cos थीटा. अभी विदाउट प्रूफ हमको बस इसको लर्न करना है सबको. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये हो गया साइन 2 थीटा का. सेकेंड फॉर्मूला cos 2 थीटा. There are four formulas of cos 2 theta. First, cos square theta minus sin square theta. Then 1 minus 2 sin square theta. Then 2 cos square theta minus 1. And last, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. होमवर्क में सबका प्रूफ करना है आपको. सारे क्वेश्चंस के प्रूफ आप सबको सॉल्व करने हैं. ठीक है. cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया. थर्ड, tan 2 थीटा. The formula is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. You can see here there are two places where we have something like this 2 tan theta दिख रहा है upon 1 plus tan square theta, right? और tan के अंदर भी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यस, डिनोमिनेटर का जो साइन है वो इम्पॉर्टेंट है. तो अगर प्लस रहेगा तो वो साइन 2 थीटा है, और अगर माइनस रहेगा तो वो tan 2 थीटा है. ठीक है. बाकी सारे फॉर्मूले इजी है लर्न करने के लिए. नाउ वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑन लेफ्ट हैंड साइड sin, cos and tan has an angle multiple of 2. Can you see that? 2 theta, 2 theta, 2 theta. डबल एंगल है. बट राइट हैंड साइड में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो राइट हैंड साइड में देर इज नो वेयर 2 theta. Everywhere it is theta only. Yes. So this is actually a general formula. अगर किसी ने आपको sin 2 थीटा की जगह पूछा sin 4 थीटा का फॉर्मूला बताओ. किसका? sin 4 थीटा. तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो. sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? 2 sin थीटा cos थीटा. मतलब इधर 2 थीटा था तो आपने थीटा लिखा, इसका मतलब 2 थीटा का हाफ किया. इधर आपने थीटा लिखा, मतलब इधर भी 2 थीटा का हाफ किया. तो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. इन टर्म्स ऑफ अगर टैन लिखना है सो इट विल बी, अच्छा ये 2 रब हो गया गलती से. इन टर्म्स ऑफ टैन लिखना है तो 2 टैन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर 2 थीटा. सबको समझ में आ रहा है? मैंने साइन
4 थीटा का फॉर्मूला कैसे लिखा? यस, जो एंगल था उसका हाफ कर दिया मैंने. यस, एंड सिमिलरली वी कैन गेट इट फॉर कॉस ऑल्सो, टैन ऑल्सो. तो जरा आप मुझे बताओगे, अगर कोई पूछेगा कि कॉस ऑफ टेन थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ टेन थीटा, तो कॉस ऑफ टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला. तो कॉस टेन थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? कॉस स्क्वायर एंगल टू थीटा था तो थीटा हुआ, अभी क्या होगा एंगल, बोलो. यस, कॉस स्क्वायर फाइव थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर फाइव थीटा. थर्ड फॉर्मूला, 2 cos square phi theta minus 1, and the last formula 1 minus tan square phi theta upon 1 plus tan square phi theta. Have you all understood how am I converting? Okay, very good. Now if I ask you, can I apply the formula if I want to find out? Let me rub this. साइन का एग्जांपल लिया हमने, कॉस का लिया, अब ये टैन का एग्जांपल लेते हैं. कैन आई फाइंड आउट टैन ऑफ थ्री थी, यू नो, नॉट थ्री, सॉरी, फाइव थीटा. कैन आई अप्लाई दिस टैन टू थीटा का फॉर्मूला इन टैन फाइव थीटा? You all are saying no. My question is why? Odd है, okay, but we can apply it in tan phi theta also. The reason is, whatever is the angle, we have to do the half of that, right? So tan phi theta है तो उसका हाफ क्या होगा, phi theta by 2. So tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. डेसिमल में नहीं लिखते अराफत, फ्रैक्शन में लिखते हैं एंगल को, ठीक है. सो आई कैन राइट दिस एज 2 tan phi theta by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर phi theta by 2. अगर किसी ने पूछा साइन ऑफ फाइव थीटा क्या होगा, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होगा टू साइन फाइव थीटा बाई टू इंटू कॉस फाइव थीटा बाई टू. और इसका दूसरा फॉर्मूला टू टैन फाइव थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर फाइव थीटा बाई टू. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सम्यक नए स्टूडेंट है, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा? वो प्रूफ शायद आपको नहीं समझा होगा, साइन टू थीटा का मैंने कैसे कराया था, क्योंकि वो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज किया था. वो जाने दो, ये नया फॉर्मूला है, ये नए फॉर्मूले को एज इट इज अपने को लर्न करना है, ठीक है. इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, पहले से कुछ आना चाहिए नहीं है, अभी से ही हमको लर्न करना है. ये सम्यक, आर यू देयर? ओके, तो हम लोग ने देखा ये फॉर्मूले एक जनरल फॉर्मूले जैसे काम कर रहे हैं, एंड आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन एनी ऑफ द एंगल ऑफ साइन कॉस टैन कॉट, राइट. कोई भी रहेगा, अगर सॉल्व करने से वो इजी होगा तो हम उसको उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट. फाइन. ना अभी हम लोग ने इतने सारे एग्जाम्पल्स तो देखे, बट एक एग्जाम्पल और देते हैं और उसको हम लोग एक अलग से फॉर्मूला काउंट करेंगे और उसको लिखना स्टार्ट करेंगे. दैट इज फोर्थ नंबर. सेम फॉर्मूला है, आप
उसकी ये जो जहां पर आपने ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, अगर राइट साइड में जगह है ना तो सेम लाइन में लिखो, जिधर साइन 2 थीटा उसके सेम लाइन में, क्योंकि इधर से ही डिराइव होने वाला है वो. But if you don't have space on the right hand side of the page, you can write down the below of tan 2 theta also. So fourth है sin theta का formula. Come on. If I ask you to derive sin theta का formula using sin 2 theta, so what will be the formula? It will be 2 sin theta by 2, right, into cos theta by 2. And in terms of tan, it is 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. This formula is called as half angle formula. What is called as half angle formula. ठीक है. अभी जैसे मैंने फोर्थ लिखा साइन थीटा का, ऐसे ही आप खुद लिखो कॉस थीटा का एंड टैन थीटा का. कॉस थीटा आई विल टेल यू ओरली. क्या होगा कॉस थीटा का? कॉस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन अपॉन नहीं, सेकेंड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, ये वाला. उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और उसके बाद 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2. जहां भी थीटा है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा, इवन इन टैन 2 थीटा. तो ये दोनों फॉर्मूले कंप्लीट करो. चलो कम ऑन, लेट मी नो इफ इट इज डन. Sin 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta, and then sin, cos, tan. So double angle and half angle हो गया तो लर्न करो. अभी का अभी बाय हार्ट होना चाहिए. अभी फॉर्मूले देखो ऐड होते जाए. फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज, sin square theta plus cos square theta 1, sec square theta is 1 plus tan square theta, cosec square theta is 1 plus cot square theta. ये 10th स्टैंडर्ड के 3 फॉर्मूले थे. इसके बाद कंपाउंड एंगल, तो उसमें हमने क्या देखा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी. तो वहां पर हमारे 8 फॉर्मूलेज हो गए. एंड नाउ साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, लाइक दैट. सो ऐसे सीक्वेंस में अपने को लर्न होना चाहिए. फाइन. I hope everyone would have done it, right? So I'll rub the entire page. Now, next is triple angle formula. So we have already done 6, so it's a 7th formula. That is sine 3 theta. Now you will say, sir, अभी तो आपने बोला कि इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो साइन 3 थीटा का भी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना. 2 sin 3 theta by 2, राइट, cos 3 theta by 2. सो डेफिनेटली वो निकाल सकते हैं. बट sin 3 थीटा ट्रिपल एंगल एक स्पेशल एंगल है. ट्रिपल एंगल, इसके लिए इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है. sin 3 थीटा होता है, उससे भी करोगे तो आंसर आएगा, बट उसमें एंगल आपका क्या हो जा रहा है, 3 थीटा बाई 2 हो जा रहा है. यहां पर देखो क्या होगा, sin 3 थीटा होगा 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. साइन 3 थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस. और इसका भी प्रूफ आपको करना है होमवर्क में. कैसे? साइन 3 थीटा को लिखोगे साइन थीटा प्लस 2 थीटा, और फिर कंपाउंड एंगल को फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, आपको ये आंसर मिलने वाला है. तो अगर कहीं साइन 3 थीटा आएगा तो
तो उसमें आप 3θ/2 का फॉर्मूला क्यों अप्लाई करोगे ना, ये वाला ज़्यादा ईजी है, राइट। तो ये साइन 3θ का फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट कॉस 3θ। कॉस 3θ इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ साइन 3θ। देखो कैसे, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऑपोजिट इन व्हाट सेंस, समझ में आया। वहां जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड टर्म हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। नाइन्थ, tan 3θ। सर वो साइन क्यूब थीटा लग रहा है, कहाँ पर साइन क्यूब लग रहा है आपको, यहाँ। तो ये साइन क्यूब ही है, ये कॉस क्यूब ही है, ये दोनों क्यूब है। यहाँ पर 3θ है, 3θ है, 3θ है, और ये दोनों में थीटा है, ठीक है। ओके, tan 3θ, 3 tan θ माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3θ। हर एक टर्म में कहीं ना कहीं 3 है, 3 है, 3 है, एक्सेप्ट दिस। Please write down these 3 formulas and let me know if it is done. Yes, everyone done? Great. Now, okay, I'll erase this. So now I think we can start with exercise 3.3. 3.3 can be solved using these formulas only. So quickly revise all the formulae starting from 2θ, 3θ, half angle, everything. 9 formulas we need to remember. Okay? And then let's start with the first problem. See the question. Find the value of sine pi/8. Anish is asking what? Can we write like this, tan 3θ? That's obvious, Anish. What is the question? This question. Tan 3θ is sin upon cos, तो लिख ही सकते हैं ना, हाँ। वो तो ऑब्वियस है, साइन 2θ, वो तो तुम tan 2θ को भी लिख सकते हो, साइन 2θ अपॉन cos 2θ। वो तो फंडामेंटल है, वो तो कोई भी एंगल होगा तो tan को साइन अपॉन cos लिख सकते हैं। ओके, चलो इधर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन pi/8। अब ये जो pi/8 है, मुझे बताओ ये क्या हमको नोन वाला डिग्री है क्या, ये नोन एंगल है। यस, हमको मालूम है π/4 45 होता है, π/6 30 होता है, π/3 60 होता है, π/2 90 होगा, π/180 होगा, 2π/360 होगा। अभी π/8 तो डिफिकल्ट है, यस सर नो स्टूडेंट। π/8 को डिग्री में कन्वर्ट करो, बताओ मुझे क्या होगा, व्हाट इज π/8। न्यू स्टूडेंट, π/8 पाई के टर्म में जब भी एंगल होता है तो हम बोलते हैं उसको एंगल्स आर इन रेडियन, एंगल्स आर इन रेडियन, ठीक है। तो हाँ, ये एंगल जो है ये रेडियन में है। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, उसको पुट करने का 180 डिवाइड बाई 8 करने का। तो 180 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो अपने को मिलेगा 22.5 डिग्री।
सो पाई बाई 8 का मतलब हुआ 22.5 डिग्री. But now tell me students, do we know the value of sine 22.5 degree? We don't know. So it means we cannot find out the answer of this question with converting into degrees and solving them. Then how to find out? So if you observe this angle pi by 8, तो pi by 8 हमको मालूम है कि अगर pi by 8 का मैंने pi by 4 कन्वर्ट कर दिया, pi by 8 को किस में कन्वर्ट कर दिया, pi by 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ हो सकता है. यस और नो? क्योंकि पाई बाई 4 45 होता है. पाई बाई 4 क्या होता है, 45 होता है. तो आपको कुछ तो एंगल फॉर्मूला करना है. अभी देखो पाई बाई 4 और पाई बाई 8 में क्या डिफरेंस है आपको मालूम है, राइट? पाई बाई 8 का ट्वाइस पाई बाई 4 होता है. यस और नो? तो अभी तुम सोचो कि क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. यस, साइन टू थीटा. कुछ लोग बोल रहे हैं साइन इंटू 2 पाई बाई 8. अगर हर चीज फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा फिर वो, हमको साइन पाई बाई 8 चाहिए. वी नीड साइन पाई बाई 8. आप जो बोल रहे हो अप्लाई करने के लिए, I'll just try to write it here. साइन 2 इंटू पाई बाई 8 अगर करूंगा मैं, तो ये लग रहा है साइन 2 थीटा. फिर इसके आगे तो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. बट फिर कॉस पाई बाई 8 का भी तो आंसर नहीं मालूम है हमको. साइशा बोल रही है 2 इंटू पाई बाई 4. साइशा चलो मैंने अप्लाई दिया किया, तो क्या मिलेगा, 2 साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4. तो सॉल्व हो जाएगा. और इधर तो आएगा पाई बाई 2. तो फिर साइन पाई बाई 8 का आंसर कैसे आएगा. वी नीड साइन पाई बाई 8, राइट? साइन पाई बाई 8 तो रहना चाहिए. आप जो बोल रहे हो उसमें तो साइन पाई बाई 8 ही नहीं है. एनीवन एल्स, कम ऑन ट्राई. Anish is saying, sir, cos pi by 4 is 1 minus 2 sin square pi by 8. Yes. बाकी बच्चे जरा सोचो अनिश ने क्या बोला. देखो, we wanted it to convert it into such formula where we can get sin pi by 8. ठीक है. And apart from sin pi by 8, the terms which should be left, it should be only in terms of 30, 45, 60, जिसका वैल्यू नोन होना चाहिए. तो अगर मैंने, हमारे पास जो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओनली साइन वाला फॉर्मूला लिया. सपोज मैंने एज्यूम किया कि थीटा इज पाई बाई 4, राइट? 2 थीटा इज पाई बाई 4. तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने cos पाई बाई 4 लिखा और cos पाई बाई 4 में ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला, तो हमको क्या मालूम है कि जो भी एंगल यहाँ होता है यहाँ पर उसका हाफ होता है. तो cos पाई बाई 4 में अगर मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
pi by 4 divided by 2, that is pi by 8. Do you all agree? Yes. अभी नाउ यू कैन सी दैट cos 45 तो वैल्यू मालूम है हमको पाई बाई 4 का, तो ये तो सॉल्व हो गया अभी, राइट. cos 45 इज 1/√2, 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज. फिर साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को इधर लेकर आया तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस 1/√2 हो गया. फिर क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई किया उधर, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 हो गया. फिर ये 2 नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन 2√2 हो गया. एंड उसके बाद ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा. तो फाइनल आंसर साइन पाई बाई 8 का होगा स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2√2. This is the only one formula which we will use to find out this sine square pi by 8. I hope everyone understood this. Please complete this. First problem. First का first. Start करने का we know and then solve करने का. कोई स्टेप कैलकुलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लेट मी नो. Done. Okay. Fine. Now जैसे हमने साइन पाई बाई 8 फाइंड आउट किया, कैन यू फाइंड आउट cos पाई बाई 8? So you will use the same cos 2 theta का formula, but which formula will you use? Yes, जो only in terms of cos है. याद आ रहा है आप लोगों को? cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. तो फिर cos 45 is 2 cos square pi by 8 minus 1. And then solve. Cos 45 1/√2, ये माइनस 1 इधर आया, प्लस 2 cos square pi by 8. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस √2, वो 2 इधर आया तो 2√2 is cos square pi by 8. And then cos square pi by 8 is root of 1 plus √2 upon 2√2.
स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ, स्क्वायर रूट उधर आ गया तो स्क्वायर नहीं आएगा। अंडरस्टूड? इजी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, देखो, फाइंड साइन 2x, cos 2x and tan 2x if sec x is given here. Please pay attention. Sin 2x, cos 2x, tan 2x if sec x is given. Now you know that sin 2x का मतलब क्या हुआ, ये जो sin 2x है, तो sin 2x तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, बट उसके लिए sin एंड cos चाहिए। cos 2x के लिए भी sin या तो cos चाहिए, और tan 2x के लिए tan चाहिए, बट ऑब्वियसली tan के लिए sin और cos चाहिए, राइट? सो इट मीन्स फाइनली वी हैव टू फाइंड sin एंड cos। अभी sec दिया हुआ है, तो sec ये है तो cos तो डायरेक्ट आ गया। cos क्या होता है, 1/sec, तो ये -5/13 हो गया in one step, and then we will use identity to find out sin x. Yes or no, student? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो उसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो साइन की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस, बट डिपेंडिंग अपॉन द रेंज। अब ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन के नेगेटिव आंसर को हम डिस्कार्ड कर देंगे। समझा आप लोगों को? चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ साइन एक्स का आंसर क्या है, ये आना चाहिए सबको 10th स्टैंडर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। sec x is -13/5, so cos x -5/13, ये आ गया अपने को। जस्ट टेल मी साइन एक्स नाउ। यस, आ रहा है आप लोगों को? यस, सो प्लस माइनस 12/13 आएगा, but because it is lying in second quadrant, it will be simply 12/13. And now I can find out sin 2x cos 2x 1/1. So sin 2x is 2 into sin x into cos x. You will put solve and get the answer. Come on, start करो। cos 2x, you have 4 formulas, कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो।
पहला यूज करोगे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसमें दोनों पुट करना पड़ेगा कॉस साइन। उससे अच्छा सेकंड या थर्ड करो ना फॉर्मूला, क्योंकि उसमें या तो साइन है या तो कॉस है। हाँ, तो मैंने सेकंड फॉर्मूला यूज किया, 1 - 2 sin² x। तो बस मुझे साइन एक्स पुट करके सॉल्व करना रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और tan 2x क्या होगा? अभी tan 2x का मैं फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, बट ऑलरेडी अगर मुझे sin 2x cos 2x मालूम है, तो मुझे tan 2x का सबसे इजी तो यही होगा ना, sin 2x upon cos 2x, and just I will substitute the value and we'll get the answer. Yes, sin 2x किसी ने तो मुझे आंसर बताया, it is -120/169। फाइन, cos 2x बता दो, tell me cos 2x now। -119/169। सो डेफिनेटली साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 120/119 आएगा। If your sine and cos is right, then my tan is also right. Yes, completed. So very simple, right? So now we will start with question number 3. You can see the rest questions of this exercise is only question number 3, and all are proved that, and there are 19 problem here. So we will be using this formula of what we have studied: 2 theta, half angle, and triple angle, and we will prove all of them. So it's quite simple problem. Before we start this, you have to add 4 more formulae to your list. Okay, they are called as a derived formulae from 2 theta. जो डबल एंगल है ना, डबल एंगल का डिराइव फॉर्मूला, सो प्लीज राइट डाउन दैट। उसमें सबसे पहला है 1 - cos 2 theta, that is 2 sin² theta, then 1 + cos 2 theta, 2 cos² theta, 1 + sin 2 theta, cos theta plus sin theta the whole square, 1 - sin 2 theta, cos theta minus sin theta the whole square। ये सारे फॉर्मूले का प्रूफ हो सकता है। ये पहले दो तो आपको समझ में आता रहेगा, -cos 2 थीटा को उधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके आओ, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल गया। इस 1 को उधर लेके जाओ तो देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल गया। हाँ, इसको होल स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा आपको।
इसका होल स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। तो ये 4 फॉर्मूलेज देख लो। अब ये 4 फॉर्मूलेज के साथ और 4 फॉर्मूलेज अटैच्ड है। वो कैसे? अगला जो नेक्स्ट 4 फॉर्मूला आप लिखोगे उन सब में ये 2 थीटा की जगह थीटा लिखो। सो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होगा? उधर था 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस पहला वाला। 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, देन 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 the whole square, and 1 minus sine theta will be cos theta by 2 minus sine theta by 2 the whole square. स्क्वायर कर देना, मेरे पास स्पेस नहीं है। सो दीज आर मोर 8 फॉर्मूलेज, 5 6 7 8। प्लीज राइट डाउन, एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन द फॉर्मूला लेट मी नो। कोई स्टेप नहीं समझ रहा है कैसे आया, फर्स्ट 4 से नीचे का 4 कैसे आया, समझ में आया सबको? Just change the angle. 2 theta is theta and the right hand side theta is replaced by theta by 2. Done? Fine. So there are 19 problems. I am not going to solve a single problem. I will not solve a single problem because these are all proof that I have given you all the formulae. ठीक है? Identities, compound and double, triple, half. I am telling you in the majority of the problems what the formulas which we have studied today, that only will be used. Okay, जिसमें एक दो एग्जाम्पल, जैसे orally I'll explain like this. You can take LHS. See why I'm telling you to start first. आप करोगे नहीं आएगा, 2 बार करो, 3 बार करो, फिर मैं बताऊँ। नहीं तो अभी मैं बताऊंगा तो आपको क्लिक होते जाएगा, ठीक है? तो फिर उसमें आपको आपका लर्निंग नहीं होगा। इसके लिए पहले आप करो, उसके बाद मैं करूँगा। सारे नहीं आएंगे तो सारे करूँगा, बट ट्राई करना है आपको सबको। ओके, चलो अभी जैसे मैं 2-3 ओरली बताता हूँ। ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला देखो, फर्स्ट वाला। यस, क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब भी हमने देखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर। 2 स्टेप के अंदर आंसर हो गया। अरे समझा क्या? तो बस यही है। हाँ, आपको 1 बाई 1 ऐसे एक एक का लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगा तो राइट हैंड साइड से लेना है, सॉल्व करना है। अभी देखो सेकेंड प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई करो ना इसको, अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है। साइन 3x है, साइन 3x का फॉर्मूला पुट करो। कॉस 3x है, कॉस 3x का फॉर्मूला पुट करो। उसके अंदर कॉस का मल्टीप्लाई, उसके अंदर साइन x का मल्टीप्लाई। सॉल्व करोगे सब कैंसिल हो जाएगा, जीरो बचेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस आप सबको ट्राई करने हैं अभी। हाँ, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है। और आप लोग घर पे ही बैठे हो, तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ है, जैसे ये रूट वाला प्रॉब्लम है, शायद जो ये 7th वाला प्रॉब्लम है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा डिफिकल्टीज आ जाए। नो प्रॉब्लम, आप ट्राई तो करो ना खुद से। क्या लगता है? अरे 2 कॉमन लूंगा तो कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, ये 6th में क्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये 9th में क्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई है। ऐसा कुछ तो करो, आप लोग सोचो क्या करो ना करोगे। ठीक है,
हाँ ऋषिकेश, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? आई विल अनम्यूट यू, वेट। बोलो। सर बोलो। हेलो। यस यस ऋषिकेश। सर वो सेकेंड सम है ना, जिसमें एल एच आर एच एस जीरो रहता है, हम्म। तो उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे ना साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स, तो उसको इज इक्वल टू माइनस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा करके ऐसा पहले ऐसा लिखा, मतलब साइन एक्स वो वैल्यू माइनस कॉस कॉस की वैल्यू से ये बताया, और बाद में सेकंड स्टेप में वो यस वैल्यू। यस, करो करो बिंदास। हाँ वो तुम करोगे तो समझेगा कि तुम सोचो लेफ्ट में सब साइन है और तुमने अगर इसको ट्रांसफर कर दिया उस साइड तो वो पूरा कॉस हाँ हो जाएगा। अभी तुम हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 3x इंटू साइन एक्स होगा, तो सारे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। इट विल, बोलते ना, इट विल बी वेरी लेंदी। यू ट्राई, उससे भी आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो तो है ना, हम कभी भी प्रूफ के क्वेश्चन को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बट सर इधर कैसा नहीं, है? हाँ मैं क्या वो साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स है ना, हाँ, वो इज इक्वल्स टू माइनस आई कॉस गॉट इट। 3। हाँ कर सकते हो। फिर लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट सॉल्व करो, राइट हैंड साइड सेपरेट सॉल्व करोगे, ऐसा बोल रहे हो ना? हेलो, म्यूट हो गया क्या ऋषिकेश? हेलो हेलो। हेलो। मैं, आप बोल रहे हो ये कॉस वाले को पूरे ट्रांसफर कर दो तो माइनस आ जाएगा, और फिर हाँ लेफ्ट हाँ। हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो और दोनों की इक्वल लाओ, यही ना? नहीं, तो साइन 3x प्लस साइन एक्स है ना, वो साइन वाला टर्म है ना पूरा, हाँ, उसको मैंने इक्वल बताया कॉस 3, वो पूरे कॉस वाले टर्म से माइनस कॉस वाले टर्म से माइनस कैसे माइनस इक्वल कॉस। बताओगे? मतलब वहां पे अभी कैसा दोनों का एडिशन किया तो जीरो आया ना, हाँ तो मैं प्लस कॉस एक्स वाला जो पूरा टर्म है ना वो हाँ आर एच एस में ले जाऊंगा तो माइनस पूरा कॉस टर्म आ जाएगा। हाँ। साइन एक्स की जगह पे माइनस कॉस वाला पूरा ऐसा टर्म डालूंगा तो प्लस माइनस वो कैंसिल हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा ना। अच्छा, मतलब तू ये बोल रहा है, समझा तेरा पॉइंट, तू बहुत चतुर है। हाँ, मतलब तू ये बोल रहा है अगर तेरे को क्वेश्चन आया प्रूफ करने को, बोर्ड पे देख, प्रूफ करने का है a प्लस बी जीरो, तो अपने ऋषिकेश भाई क्या बोलते हैं, क्या करो मालूम है प्रूफ में? आप पहला बोल दो कि वी नो दैट a प्लस बी इज जीरो, बराबर ऋषिकेश? देयर फॉर ए इज हाँ माइनस बी, रुको रुको, ए इज माइनस बी, और फिर बोलता है ऋषिकेश की लेफ्ट हैंड साइड लो, उसमें ए प्लस बी लिखो, बाद में ए की जगह माइनस बी डालो, तो हाँ माइनस बी हाँ प्लस बी जीरो हो गया, बराबर ना ऋषिकेश? हाँ। अरे, मेरे को प्रूफ करने का है और तूने वो वीनो बोल दिया, तो तू पहले ही एज्यूम कर ले रहा है कि ए प्लस बी जीरो है। नहीं, जस्ट पूछ रहा था ऐसा कर सकते। अरे कैसा कर सकता है? तुम जिसको प्रूफ करने का है उससे ही तुम इक्वेशन बना रहे हो, तो फिर तो वो इधर ही प्रूफ हो गया ना, अगर इसका यूज करने का है तो डायरेक्टली अरे प्रूफ हो हाँ हाँ गया। ए हाँ हाँ प्लस बी जीरो, फिर तुमको माइनस बी क्यों करने का, फिर उसको सब्सटीट्यूट क्यों करने का, है कि नहीं? हाँ हाँ। वो तो एकदम अलग ही तुमने क्वेश्चन पूछ लिया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो अभी चलो, अभी देखो 5:22 हुआ है, आज मैं जरा जल्दी छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कल ही मेरा लेक्चर है, तो 1 to 19। हाँ अभी मेरे बात ध्यान से सुन लो। जो बच्चा बोलेगा, जैसे किसी ने बोला सर फिफ्थ बताओ, तो मैं बोलूंगा शेयर करो फिफ्थ प्रॉब्लम 3 टाइम्स तुमने सॉल्व किया, 3-4 पेजेस आपका कैंसलेशन दिखना चाहिए मुझे, उसके बाद मैं फिफ्थ बताऊंगा। एम आई क्लियर टू ऑल? आप क्वेश्चन देख के कैसा बोल सकते हो सर नहीं आया? अरे ये क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है क्या कि बाबर कभी मरा? अभी वो तो फिक्स है ना, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। मैथ्स है, मैथ्स में तो ट्राई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, थोड़ी देर तड़पेगा, राइट हैंड साइड नहीं आया, फिर राइट हैंड साइड लेगा, फिर इधर उधर करेगा, ऐसा कम से कम 2-3 टाइम्स करने का है, राइट? एंड देन इफ यू डोंट गेट इट, देन आई विल आंसर इट। पक्का? तो समझ लो 19 क्वेश्चन है, कल तक का टाइम है,
तो आपको ये कंप्लीट करना है। हाँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss the one which is difficult one or the one which you are not able to get it. Fine. So that's all for today students. Thank you very much. लग जाओ अभी, टेक्स्ट बुक ओपन करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलो हाँ, क्या बोल रहा है कोई? आई डोंट हैव पर्सनल फोन नंबर सो आई एम अनेबल टू वॉच वीडियो लेक्चर इन द नेक्स्ट मंथ। आई विल टेक फोन। अरे तुम्हारा नहीं है, घर पे किसी का तो है ना आदि, घर पे किसी का है, पापा मम्मी। पापा जॉब पे जाएंगे तो रात को आएंगे, उनके मोबाइल से देखो। हाँ, पर्सनल मोबाइल होना जरूरी थोड़ी ना है लेक्चर्स के लिए, आप किसी भी मोबाइल से देख सकते हो। लेट आते तो तुम लेट पढ़ाई करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑल द लेक्चर्स आर अपलोडेड। ठीक है, सारे लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय। When will you give the marks of mathematics test? Students, टेस्ट के मार्क्स ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में है, गो एंड चेक। आप जाओ क्लास वर्क में जाओ, उसमें आप देखो कौन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जो भी टेस्ट है उसको क्लिक करो। क्लिक करोगे यू विल सी टू फाइल्स। one file is the one which you have uploaded and the second file is the one which teacher has corrected। तो करेक्टेड वाला भी दिखेगा आपको नोटबुक पूरा। हाँ, तो प्लीज चेक इट आउट।